Good morning, students. Let's see our another chapter from Behave, Reach for the Top, Part 1. Introduction देख लेते हैं. The article is about Santosh Yadav, the first woman in the world to climb Mount Everest twice. Her story is inspiring. Despite being born in a secured society which didn't welcome the birth of a girl child, where girls were married off at 16, she made her own path, followed her desires and achieved world fame. तो जो ये फर्स्ट पार्ट जो है वो किसके बारे में, तो संतोष यादव के बारे में, जिन्होंने जो कि फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की. ठीक है. और जो ये स्टोरी जो है वो हमें इंस्पायर करती है. क्यों? क्योंकि जिस सोसाइटी से वो आई थी वहाँ पर कभी भी जो लड़की जब पैदा होती है तो उनको कभी भी वेलकम नहीं किया जाता और 16 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है. लेकिन उन्होंने अपना खुद का एक पाथ चुना और उनका जो डिज़ायर जो था और अचीवमेंट उन्होंने ईजीली कर लिया. जो डिज़ायर था, उनका डिज़ायर जो था कि उनको माउंट एवरेस्ट पे जो है क्लाइम करना था, तो उन्होंने वो जो है क्लाइम कर और जो भी अचीवमेंट थे वो उन्होंने पा लिए. When this article was written, Santosh Yadav was the only woman in the world to have climbed the Mount Everest twice. She was born in a such society which was built towards having a male child over a female child. Although they didn't consider the birth of a girl child to be unfortunate, but it was not celebrated either. When Santosh was to be born, a saint, assuming that Santosh's mother wanted a son, blessed her that she would beget a son. As she already had 5 sons, Santosh's grandmother said to the saint that they didn't want a son. The saint was amazed to hear this and blessed her alternatively. The blessing turned into a reality as Santosh was born. She was the youngest child, a sister to 5 brothers. Santosh was born in a village named Joniawaz in रेवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. तो ये जो आर्टिकल जो लिखा गया है वो संतोष यादव के ऊपर लिखा गया है, जिन्होंने जो है 2 बार जो है चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट पे. और जिस सोसाइटी से वो आई थी वहाँ पर ज़्यादातर जो है मेल चाइल्ड जो होता है उनको ज़्यादा कंसिडर किया जाता है फीमेल चाइल्ड से ज़्यादा. और अगर किसी भी गर्ल का अगर बोर्न होता है वहाँ पे तो उसमें सेलिब्रेशन नहीं किया जाता किसी तरह का भी. लेकिन क्या हुआ कि संतोष का जब जन्म हुआ तब जो सेंट जो थे तो उन्होंने एक जो बाबा जो थे साधु बाबा, उन्होंने उनकी माँ को जो है बोला था ऐसा कि उनका जो है वापस से एक बेटा होगा. उनको फिर उन्होंने ब्लेस किया था कि उनका बेटा ही होगा. लेकिन ऑलरेडी 5 बेटे हुए थे उनके. तो संतोष की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने कहा कि अब उन्हें जो है वापस से जो है कि लड़का नहीं चाहिए. तो वो जो संत साधु जो थे वो थोड़े से चौंक गए, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको ब्लेसिंग्स दी. और ब्लेसिंग्स का क्या हुआ कि रियलिटी जो है वो टर्न हो गई और एक लड़की का जन्म हुआ. अब वो जो लड़की जो है संतोष, वो 5 भाइयों में सबसे छोटी लड़की थी. और संतोष का जन्म कहाँ हुआ था, तो जोनियावास रेवरी डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा में, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था. Although Santosh's name means contentment, she was dissatisfied with the traditional way of life. From a young age, she started living life on her own terms. While other girls wore traditional Indian dresses like salwar kameez, she preferred wearing shorts. Santosh recollects that from childhood, she was determined to live life according to what she felt was right for her. If she was right in her way, then others would have to change their way and not her. Santosh's parents owned land and were wealthy.
They could even afford the money to send their children to study in schools in Delhi, which was near their village. Still, due to the prevailing customs, they decided to send Santosh to a school in the village. Santosh decided that she had to take her own path when the right time came. At the age of 16, as most of the girls in her village were married off, she was also pressurized by her parents. तो क्या हुआ कि संतोष का जो मीनिंग है वो क्या होता है, कंटेंटमेंट, और लेकिन वो अपनी लाइफ से जो है ट्रेडिशनल लाइफ से डिससेटिस्फाइड थी। क्यों? क्योंकि यंग एज में जो है उनकी जो लाइफ जो थी बहुत टर्म्स में जो है बढ़ चुकी थी। उनके वहाँ पे जो दूसरी लड़कियाँ थी वो इंडियन ड्रेसेस पहन के रहा करती थी और वो शॉर्ट्स पहन के रहती थी। और संतोष जो है बचपन से ही जो है अपनी लाइफ खुद ही जीना चाहती थी, जो सही लगता था वो वही किया करती थी। और इस वजह से क्या हुआ कि जो भी उन्हें सही लगता था वो करती थी, तो दूसरे लोग जो है उनके उस वे को चेंज करने लगे, ना कि उन्हें, यानी उन्हें जो सही लगता था वो वही करते थे, ना कि वो उन्हें चेंज करना चाहते थे संतोष को। वो उनकी सिर्फ लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते थे। और संतोष के जो फैमिली मेम्बर्स जो थे वो उन्हें जो है मीन्स उनके बच्चों को वो जो है उनके इतने पैसे तो थे कि वो उन्हें स्टडी के लिए स्कूल भेज सकते थे, जो कि दिल्ली में था और उनके विलेज से बहुत पास में था। लेकिन किसी कस्टम्स की वजह से उन्होंने संतोष को जो है विलेज में ही स्कूलिंग करवाई। और उसके बाद क्या हुआ कि संतोष ने डिसाइड किया कि वो खुद का पाठ चुनेंगी और जो भी सही लगेगा वो करेंगी। एज ऑफ 16, तो जब वो 16 की हुई तो उनके वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ होती थी 16 साल की, उनकी शादी कर दी जाती थी। और उनके पेरेंट्स ने भी उनको इसी बात को लेकर प्रेशर किया। For her, getting married was nowhere in the list. She wanted to get proper education before getting married. Santosh left home and got admission in a school in Delhi. Her parents refused to fund her studies, and she gently replied that she would herself fund her studies by working part-time. Upon seeing her determination, the parents softened their stand and agreed to pay for her education. Santosh wanted to be highly qualified, and her father accepted her wish. After passing high school, she joined to Maharani College at Jaipur and stayed at the Kasturba Hostel. The Aravalli Hills were near the hostel. Often she saw villagers climbing the hills and disappearing behind it. She was curious to know what was beyond the hills, and one day she decided to find out. Santosh found a few mountaineers who allowed her to join them in their mountaineering expedition. Since then, Santosh progressed gradually to become an accomplished mountaineer. She saved money to get enrolled in a mountaineer course at the Nehru Institute of Mountaineering at Uttarkashi. As her college semester and got delayed and she didn't have time to visit home before reporting at the Nehru Institute of Mountaineering, she went directly to the institute and wrote a letter of apology to her father because she had enrolled for the course without his permission. तब क्या हुआ कि उनके पेरेंट्स जो है अब उनकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है पहले अपना एजुकेशन सोचा शादी से पहले। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, उसके बाद ही वो जो है शादी करेंगे। इसलिए संतोष जो है उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और फिर उन्होंने एडमिशन ले लिया दिल्ली में। दिल्ली में एडमिशन लेने के बाद क्या हुआ कि उनके पेरेंट्स जो है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो उनकी स्टडीज़ के लिए पैसे नहीं देंगे। तो
उन्होंने जो है अपने पेरेंट्स को सॉफ्टली जो है रिप्लाई किया कि अगर वो उनको उनके एजुकेशन के लिए अगर वो उन्हें पैसे नहीं देंगे तो वो जो है पार्ट टाइम जॉब कर लेंगी कुछ भी, और उससे जो भी वो अर्न करेंगे उससे वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगी। तो ये डिटर्मिनेशन देखने के बाद उनके पेरेंट्स जो है उन्होंने उनके लिए स्टैंड लिया और उसके बाद उनकी एजुकेशन के लिए उन्होंने पे भी किया। संतोष जो है हाईली क्वालिफाइड होना चाहती थी और उनके फादर ने उनकी जो विश जो है उसको एक्सेप्ट कर ली। जब उन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया उसके बाद उन्होंने जो है ज्वाइन किया महारानी कॉलेज जयपुर में, और वो जो है कस्तूरबा हॉस्टल में रहने लगी। तो जिस हॉस्टल में वो रहती थी उनके हॉस्टल के सामने जो है अरावली हिल्स था, और वहाँ से वो देखा करती थी कि विलेजर्स जो है वो क्लाइंब करते थे उस हिल्स को, फिर वहाँ से वो डिसअपियर हो जाते थे। दैट मीन्स वो वहाँ से गायब हो जाया करते थे। दैट मीन्स कि अगर वो कोई दूसरी वे पे जाते थे तो वहाँ पे फिर वो दिखा नहीं करते थे। तो वो बहुत क्यूरियस हो जाती थी ये जानने के लिए कि बियॉन्ड द हिल्स में आखिर है क्या। तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो जानकर रहेंगी। तो संतोष ने क्या फाउंड किया कि एक माउंटेनर्स जो है वो वहाँ पे चढ़ाई करने जाते थे, तो उन्होंने उनको अलाउ किया कि वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो संतोष जो है अब उनका एक सपना जो था कि पूरा होने वाला था कि एक्चुअल में वो जो माउंटेन है उसके पीछे है क्या। तो उन्होंने क्या किया कि पैसे जो है वो सेव करने स्टार्ट कर दिए ताकि वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में, जो कि उत्तर काशी में जो था, वहाँ पे वो उस कोर्स को कंप्लीट कर पाए। तो लास्ट ईयर था सेमेस्टर का, जो कि डिले हो गया था किसी रीज़न से ख़त्म होने में। तो फिर उस टाइम उनको इतना टाइम था कि वो वापस घर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, सीधा रिपोर्टिंग कर दिया नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में। और उन्होंने एक लेटर लिखा अपने फादर को कि वो माफ़ी चाहते कि वो उन्होंने जो है वो जो कोर्स जो है उनकी परमिशन के बिना जो है अप्लाई किया है, तो वो उस समय वो घर नहीं आ पाएंगी। संतोष went on an expedition every year and improved her skills gradually. She developed immunity to cold weather and heights. Santosh had the qualities of physical strength, mental strength, and strong willpower. In 1992, 4 years after her first casual climb on the Aravalli Hills, she climbed Mount Everest. She was 20 years of age. Santosh became the youngest woman in the world to climb the peak. Her seniors were impressed by her qualities of physical strength, mental strength, and strong willpower. Her companions on expeditions found her to be concerned for others and willing to work as a team. During the 1992 expedition to Everest, she tried to save a fellow climber but was unsuccessful. She was successful in saving another fellow climber, Mohan Singh, who fell short of oxygen by sharing her oxygen with him. Within the next year, she had joined a group of Indo-Nepalese mountaineer women. Then she climbed the peak the second time, becoming the only woman to have climbed the Everest twice. तो अब क्या हुआ कि संतोष जो है अब हर साल जो है वो क्लाइंब करने के लिए वहाँ पे जाया करती थी। उससे उनकी स्किल जो है वो इम्प्रूव होने लगी और एक तरह से उन्होंने जो अपनी इम्यूनिटी जो है डेवलप करनी शुरू कर दी कि कोल्ड वेदर और हाइट में वो कैसे अपनी बॉडी को जो है एडजस्ट कर पाए। तो हुआ ऐसा कि संतोष जो है उन्होंने अपनी जो क्वालिटीज़ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है और स्ट्रॉन्ग विल पावर जो है उसको उन्होंने ज़्यादा डेवलप किया। 1992 में 4 साल बाद जो है उन्होंने अरावली हिल्स जो है उस पर क्लाइंब किया और उसके बाद फिर उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ाई की। और जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की तो वो सिर्फ 20 ईयर्स की थी और वो फर्स्ट यंगेस्ट वूमेन थी पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। उनके सीनियर जो है उनकी ये क्वालिटीज़ देख के, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और विल पावर देख के बहुत इम्प्रेस्ड हो गए थे। और उनके जो कंपेनियंस जो थे तो उन्होंने क्या कंसर्न किया, उन्होंने जो है दूसरों को भी कंसर्न किया कि वो इनके संग जो है एज अ टीम
वर्क करे। और 1992 में जब वो उनके जो एक्सपीडिशन जो था एवरेस्ट पर, तो वो अपने एक फेलो क्लाइंबर को जो है बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें वो अनसक्सेसफुल हो गई। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने अपने जो अनदर जो फेलो जो था क्लाइंबर मोहन सिंह, जिनको शॉर्ट हो गया था ऑक्सीजन में, उनके जो कि उनके पास जो ऑक्सीजन जो था उसमें कमी हो जाने की वजह से उन्होंने अपना ऑक्सीजन जो है उनके संग शेयर किया था। तो उस वजह से उन्होंने उनकी जो है लाइफ बचा ली थी, लेकिन वो एक की लाइफ नहीं बचा पाई। तो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, उन्होंने वापस से जो है एक ग्रुप ज्वाइन किया इंडो नेपालीज माउंटेनर वुमेंस का, और वापस से उन्होंने जो सेकेंड टाइम जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया, तो वो वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन बन गई जिन्होंने 2 बार जो है ट्वाइस टाइम जो है एवरेस्ट पर क्लाइम किया। Santosh made India proud by getting her name recording in the historic records of mountaineering. The Indian government honored her achievement by giving her the Padma Shri Award. Santosh recollects her feelings when she was literally at the top of the world. She took time to realize that she had achieved something big. She hoisted the Indian flag atop Mount Everest on the highest point of the world. She cannot put the great feelings into words. She felt proud to be an Indian. As she believes in preserving the environment, she did her bit by bringing down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. तो संतोष ने जो है इंडिया को प्राउड फील कराया और अपना नाम जो है एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड ऑफ माउंटेनिंग में रिकॉर्ड करवाया, और इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने उनको ऑनर किया पद्मश्री अवार्ड देकर, जो कि बहुत बड़ा अवार्ड होता है। और उसके बाद जो है संतोष की जो फीलिंग्स जो थी, जो टॉप की का वो वर्ल्ड के टॉप पर पहुंच चुकी थी, वो 2 टाइम उन्होंने क्लाइम किया था, इसलिए तो वो जो फीलिंग्स जो थी और जो अचीव करते समथिंग बिग, तो उसको जो है एक्सप्रेस करना वर्ड्स में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और माउंट एवरेस्ट से पूछने के बाद उन्होंने जो है इंडियन फ्लैग जो है उसको होस्टेड किया था, दैट मीन्स को उन्होंने उधर फैलाया था लगाकर। तो एक तरह से बहुत प्राउड हुआ उन्हें एज एन इंडियन। और वो जो है बिलीव करती थी कि हमें अपने एनवायरनमेंट को जो है बचाना है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो हिमालय से 500 किलोग्राम्स जो गैब्रेज यानी कि जो गंदगी जो थी, जो आए दिन जो गंदगी फैला करती थी हिमालय में, अगर कोई टूरिस्ट वहाँ पे जा रहे हैं या फिर इंडियंस अगर जा रहे हैं तो वो गंदगी जो फैला करती थी, उन्होंने हिमालयस में से 500 किलोग्राम्स गैब्रेज जो है उसको उन्होंने साफ़ किया था। वो नीचे लेके आए थे, पूरा साफ़ करके लाए थे। तो एक तरह से जो कि ऑनर था उनके लिए कि उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत कुछ किया। तो यहाँ पे जो था वो फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट पे जा रहे हैं, जो कि मारिया शारापोवा के लिए। हम लोग जानते हैं कि वो टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं, अब हम उनके बारे में जानते हैं। तो मारिया शारापोवा स्टोरी ऑफ सक्सेस एज शी बिकेम द टॉप seeded woman tennis player in the world motivates us. She overcame all the hurdles and bore humiliation in order to achieve her dream. Maria's hunger for success and her competitive spirit kept her going. तो मारिया शारापोवा जो है उनकी स्टोरी जो है बहुत सक्सेसफुल रह चुकी है, और वो वर्ल्ड की टेनिस प्लेयर, वुमेन टेनिस प्लेयर में जो है उनका नाम है, वो फर्स्ट आई थी कई बार, उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। इवन टेनिस में जो है टेनिस वर्ल्ड चैम्पियन में भी वो उन्हें जो है फर्स्ट प्राइज़ मिल चुका है। तो उन्होंने वर्ल्ड को भी मोटिवेट किया है, और उनके जो ड्रीम्स जो थे उन्होंने उनको अचीव किया, और उनकी जो सक्सेस को लेकर जो भूख जो थी और कम्पिटिटिव स्पिरिट जो थी उसको वो लेकर आगे चली। There is some quality in contrast to Maria Sharapova's smile and glamour which make her likable. It is this quality that helped her achieve success as she attained world number 1 position in women's tennis on Monday, 22 August 2005.
Maria's calmness and ignorance is beyond her age. She was born in Siberia, Russia, and a teenager. She took only 4 years of training to become the top seeded women tennis player. The fast growth of her career started 9 years ago when she made a big sacrifice which can be made by very few children of that young age. She hadn't even turned 10 when she was sent to Florida, USA with her father for training in tennis. She was extremely sad as she had to spend 2 years separation from her mother, Elena. Maria's mother was forced to stay back in Siberia because she didn't have the permit to travel to the US. At the tender age of 9, Maria learned that in order to excel at tennis, she would have to make many sacrifices. तो एक क्वालिटी बताते हैं मारिया शारापोवा की स्माइल और गैमरोल के बारे में कि उनकी जो क्वालिटी थी उसने बहुत हेल्प की थी उनके सक्सेस को अचीव करने के लिए और वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन पे आई थी वो वुमेंस टेनिस पे मंडे 22 अगस्त 2005 को। तो उनकी कामनेस जो है वो उनकी जो एज है उससे बियॉन्ड थी। क्यों? जब उनका जन्म जो हुआ था साइबेरिया रशिया में हुआ था और एज अ टीनेजर की अगर हम बात करें तो 4 साल की ट्रेनिंग में ही उन्होंने जो है इतना ऊंचा मकाम जो है वो हासिल कर लिया था, इतना टॉप पे वो पहुंच चुकी थी। और फास्ट ग्रोथ जो उनकी कैरियर का था वो कब स्टार्ट हुआ था? 9 इयर्स एगो। और उन्होंने बहुत बड़ा जो है सेक्रीफाइस किया था बचपन में ही। और वो सेक्रीफाइस किया था कि जब वो 9 इयर्स की थी, 10 की भी नहीं थी, तब उन्हें जो है फ्लोरिडा USA अपने फादर के संग ट्रेनिंग के लिए आना पड़ा था टेनिस की। और बहुत ही दुखी थी वो क्योंकि वो 2 साल तक जो अपनी मम्मी से, उनकी जो माँ थी जो येलेना, उनसे उन्हें दूर रहना था। और उनकी माँ को जो है साइबेरिया में ही फोर्सली रहना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्हें परमिट नहीं मिला था ट्रैवल करने के लिए US में। और जो 9 इयर्स की जो एज जो थी वहाँ पे उन्होंने जो है टेनिस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखी और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस भी किए। Maria recollects that she used to remain alone and missed her mother a lot. Her father worked hard to fetch money for her needs and so he also couldn't meet her. तो मारिया जो है बहुत सारी चीज़ें रिकलेक्ट करती है कि उन्हें जो है 2 साल तक अकेले रहना पड़ा, अपनी माँ को मिस कर रहे थे। उनके फादर जो है बहुत वर्क हार्ड कर रहे थे ताकि वो उनके लिए पैसे इकट्ठा कर सके और इसलिए वो जो है उनसे बिल्कुल भी मिल नहीं पाते थे। मारिया वॉज वेरी यंग एंड सो शी वुड गो टू स्लीप एट 8 PM। तो जो है मारिया जो है यंग थी और वो रात को जो है 8 बजे सो जाया करती थी। द अदर स्टूडेंट वुड रिटर्न एट 11 एंड वुड वॉक अप हर would wake her up ordering her to clean the room। तो वो जो है 11 बजे आया करते थे और उन्हें वो उठा दिया करते थे, उनसे कहते थे कि वो रूम क्लीन कर दे। मारिया didn't get depressed by all this। तो मारिया जो इन सारी चीज़ों से डिप्रेस नहीं हुआ करती थी। Instead she became determined and mentally tough। तो इन चीज़ों ने जो है उनको मेंटली टफ बना दिया था। She took care of herself, वो अपनी ख्याल खुद रखा करती थी। She never thought of leaving the training because she was determined to achieve her aim। और उन्होंने कभी भी जो है अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी क्योंकि वो अपनी लाइफ में उनका जो एम जो था उसको वो अचीव करना चाहती थी। When a person has nothing, he craves and become determined to get it। जब आदमी के पास कुछ नहीं होता ना तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अचीव कर सकता है अगर वो चाहे तो। She says that she would have borne greater humiliation and insults also in order to achieve her dream। तो जिस जगह उनका जो बोर्न हुआ और जहाँ पे उनको बहुत इंसल्ट मिली वहाँ पे उन्होंने अपना ड्रीम जो है उसको बहुत अचीव किया। Maria retains her determination till present day। This determination lead her to grab the women's
singles trophy at the Wimbledon Championship in 2004, followed by the rapid climb to the top position in 2005. Tennis fans feel emotional to know about Maria's journey from the frozen region of Siberia, but she is not moved by it. She gives straight answer when questioned about her aims, which implied that she accepted that the horrors and challenges she faced were worth the result that she got. तो मारिया जो है तो वो जो है हमेशा से जो है अपना जो ड्रीम है उसको अचीव करना चाहती थी, और आज तक उन्होंने जो है अपने डिटर्मिनेशन को जो है वैसे ही रखा। और जब वुमेन सिंगल ट्रॉफी जब स्टार्ट हुई चैम्पियनशिप 2004 में, तो उसको उन्होंने जो है उसमें पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद जो है वो टॉप पोजीशन पे पहुंच गई 2005 पर। और टेनिस फैंस जो थे उन्होंने भी उनके इमोशनल जो है फील किया अपने इमोशंस को, क्योंकि वो मारिया की जो जर्नी जो है उसके बारे में वो जानते थे कि वो कौन सी जगह से आए हुए। वो साइबेरिया से आई थी जहाँ पे बहुत ही ठंड रहती है, और लेकिन फिर भी जो है उन्होंने हार नहीं मानी, और उन्होंने हमेशा जो है स्ट्रेट आंसर दिए जब भी उनके एम्स को लेकर क्वेश्चंस पूछे गए, और उन्होंने हमेशा एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने जो भी उनकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए, हर्डल्स आए, उन्होंने उसको फेस किया, और एक्सेप्ट में उनको रिज़ल्ट क्या मिला, जो उन्हें वो रिज़ल्ट चाहिए था वही रिज़ल्ट उन्हें मिला वहाँ पर। She adds that she is competitive and work hard as she considers it to be a part of her work. तो उन्होंने हमेशा जो एक चीज़ ऐड की है कि उन्होंने हमेशा अपने काम को जो है हार्डली लिया है, और जो है कम्पिटिटिव रखा हुआ है। उन्होंने उसको जो है कंपटीशन लेकर ही यूज़ किया है अपने काम को, और वही उनके काम का एक हिस्सा बना। दिस इज़ मारिया सीक्रेट फॉर सक्सेस। ये मारिया का सीक्रेट है सक्सेस का। मारिया स्पीच हैज़ एन अमेरिकन एक्सेंट बट शी इज़ प्राउड टू बी अ रशियन। तो मारिया की जो स्पीच है वो अमेरिकन एक्सेंट है, लेकिन वो हमेशा प्राउड करती हैं कि वो रशियन है। शी सेज दैट USA इज़ अ बिग पार्ट ऑफ हर लाइफ बिकॉज शी ट्रेन्ड देयर, बट इन द कोर ऑफ हर हार्ट शी इज़ अ रशियन। तो कहती कि USA जो है वो उनकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें ट्रेंड किया गया, लेकिन उनके दिल के कोने में आज भी जो है वो क्या है कि वो रशियन ही है। शी होल्ड्स द सिटीजनशिप ऑफ रशिया, हर एक्सेप्टर्स आर रशियंस एंड शी इज़ विलिंग टू रिप्रेजेंट रशिया एट द ओलंपिक्स टू। तो उन्होंने जो है अपनी सिटीजनशिप जो है रशिया की उसको होल्ड करके रखा उन्होंने हमेशा, और उनके पूर्वज जो थे वो भी रशियन थे, और उनकी एक इच्छा है, वो चाहती हैं कि वो रशिया को जो है ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट कर सकें। लाइक अदर्स टीनेजर्स हर एज, मारिया's फेवरेट पास टाइम आर फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग। तो उन्हीं जो टीनेजर जो है उनकी एज में, तो मारिया का फेवरेट पास टाइम क्या है, तो फैशन करना, सिंगिंग करना और डांसिंग करना। शी लाइक्स टू रीड नॉवेल्स रिटन बाय आर्थर कॉनन डॉयल, द क्रिएटर ऑफ शेरलॉक होल्म्स। तो उनका जो फेवरेट रीड जो नॉवेल है वो कौन सा है, तो आर्थर कॉनन डॉयल का है, जिन्होंने जो है शेरलॉक होल्म्स लिखा था। शी लाइक टू वेयर फैशनेबल evening gowns. Looking at her fit body, it is unbelievable that she likes to eat pancakes with chocolate spread and drinks aerated orange flavored drinks. तो उनका जो फेवरेट फैशनेबल जो गाउन है वो है इवनिंग गाउन है, और अपनी जब भी फिट बॉडी को वो देखती हैं तो वो बिलीव नहीं कर पाती, क्योंकि वो हमेशा जो है पैनकेक्स जो है वो खाया करती हैं चॉकलेट के साथ, और वो जो है ऑरेंज फ्लेवर ड्रिंक जो है वो लिया करती हैं। मारिया कैन नॉट बी पुट इनटू अ पर्टिकुलर कैटेगरी। हर टैलेंट, urges to succeed, and sacrificing nature helped her reach the top position in women's tennis. No one will oppose the benefits that she is getting now because she made many sacrifices
to get them. She says that money doesn't motivate her to work hard. Tennis is both a sport and a business, but the most important aspect of her was to reach the top spot in women's tennis. It was this dream that kept her working further. तो मारिया जो है कभी भी पर्टिकुलर कुछ कैटेगरी में नहीं आती थी और उनका टैलेंट जो है उसमें उन्होंने जो है बहुत सेक्रीफाइस किया था और वही सेक्रीफाइस जो है उन्हें टॉप पोजीशन पे वुमेंस टेनिस की टॉप पोजीशन पे लेकर गया। और एक और चीज़ वो जो कहती है कि जो बेनिफिट जो है उसका कभी भी उन्होंने मिसयूज़ नहीं किया। और साथ ही साथ जो है अगर बात करें तो बहुत से लोग जो है सेक्रीफाइस करते हैं तब जाके उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और वो एक और चीज़ कहती है कि पैसा जो है वो आपको मोटिवेट नहीं करता है वर्क हार्ड करने के लिए, लेकिन टेनिस जो है वो उनके लिए स्पोर्ट भी है और एक तरह से उनका बिजनेस भी है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें जो है उनकी लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रह चुका है, क्योंकि उन्होंने वुमेंस टेनिस में टॉप स्पॉट पे पहुंचाया था और वो जो उनका ड्रीम जो था वो उन्होंने जो है वर्क हार्ड करके जो है अचीव किया। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।